This lecture on the demand of the students, I am going to take class 11th also. Let us start from a fresh chapter, that's work, power and energy. इसमें जो आपको पहले पढ़ना है, पहले क्या आपको पढ़ना है, वर्क क्या होता है. Let us start with the work. In physics, work has some different meaning. फिजिक्स में जो काम होता है उसका कुछ अलग ही माने हैं. फिजिक्स में हम वर्क किससे कहते हैं? अगर हम एक बॉडी लेंगे, सपोज यहां पर मैंने एक बॉडी ले ली, सपोज इस बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, अगर ये बॉडी मूव हो गई, अगर इस बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, then we can say that work is done on a body. हम ऐसे बताएंगे, work is said to be done on a body if the force acting on a body displaces the body through a certain distance, displaces the body through a certain distance in the direction of force. हम बताएंगे कि अगर एक बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया, अगर इस फोर्स की वजह से ये बॉडी कुछ डिस्टेंस, इस बॉडी ने कुछ डिस्टेंस मूव की इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वहीं से जहां से हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि वर्क इज डन ऑन ए बॉडी. अगर बॉडी ने डिस्टेंस मूव नहीं की, अगर बॉडी मोशन में नहीं आई, इफ द बॉडी डजंट कवर एनी डिस्टेंस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, देन नो वर्क इज डन ऑन ए बॉडी. So in physics, work is said to be done on a body if a body moves through a certain distance in the direction of force. For example, यहां पर मेरी बॉडी है, इसको मैंने क्या अप्लाई किया, शाबाश, इसको मैंने फोर्स अप्लाई किया. अगर इस फोर्स की वजह से इस बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर की, सपोज इट कवर्स अ डिस्टेंस s in the direction of force, then we can say that work has been done on a body, or work is done on a body. Thus, for doing work on a body, two conditions must be fulfilled. Thus, for doing work on a body, two conditions must be fulfilled. Number one, body पे क्या act होना चाहिए? Force. Number one, force must act on a body. Force must act on a body. Number second, body should move through a certain distance. Body should move through a certain distance, yeah, displacement in the direction of force. In the direction of force. Therefore, for doing work on a body, the following two conditions must be satisfied. Number first condition, बॉडी पे क्या एक्ट होना चाहिए, फोर्स. उस फोर्स की वजह से बॉडी को क्या होना चाहिए, बॉडी शुड मूव थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इस वर्क को हम कैसे मेजर करेंगे? इसको हम डिनोट करते हैं W के साथ. इसको हम मेजर करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, and the component of force in the direction of displacement. Component of force in the direction of displacement, yeah, in the direction of distance. This work is measured as the product of distance moved by the body, yeah, displacement moved by the body, and component of force in the direction of displacement. चूंकि हमारा जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट जो होगा वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, दैट विल बी, ठीक है ना, दूसरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो वर्क जो है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय अ बॉडी इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये रिलेशन जो है ये मैं यूज करूंगा आगे. तो आपने क्या देखा, आपने ऐसे बताया कि वर्क इज सेड टू बी डन ऑन ए बॉडी बाय फोर्स इफ द फोर्स
moves the body through a certain distance in its own direction. For doing work, two conditions must be fulfilled. Number one, force must act on a body. Number second, body should move through a certain distance or certain displacement in the direction of force. ये कितने चीज measure करा? How it is measured? It is measured as शाबाश product of distance or displacement and the component of force in the direction of displacement. ठीक है ना? अब हम आगे जाएंगे. Let us derive the expression for work done on a body by a constant force. The first expression in this, number one, work done on a body by a constant force. On a body by a constant force. क्योंकि हमारा जो force होगा that will be constant as well as variable. ठीक है ना? पहले हम पढ़ेंगे work done on a body by a constant force. हम निकालेंगे एक एक्सप्रेशन जो एक कांस्टेंट फोर्स हम बॉडी पे अप्लाई करेंगे. हम देखेंगे कि इस कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने से बॉडी पे कितना वर्क डन हो सकता है. हम लेट अस कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर दिस. वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ कांस्टेंट फोर्स. सपोज बेटा मेरे पास यहां पर एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. दैट मींस अ सरफेस हैविंग नो फ्रिक्शन. स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस. सपोज इस सरफेस पे मैं यहां पर एक बॉडी रखूंगा. किस पॉइंट पे बॉडी रखूंगा मैं? पॉइंट ए पे, एट पोजीशन ए. ये एक बॉडी है. इस बॉडी को मैंने रखा. कहां पर रखा बेटा? एट पॉइंट ए. सपोज इस बॉडी पे मैं अप्लाई करूंगा एक कांस्टेंट फोर्स एफ. This is the constant force F which I have applied on a body. ठीक है ना? At this point. ठीक है ना? In a direction making angle theta with the horizontal. मैंने एक बॉडी ली. इस बॉडी को मैंने प्लेस किया किस पे? एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. इस बॉडी पे ये कौन सी डायरेक्शन है? हॉरिजॉन्टल. ये कौन होगी? वर्टिकल. इस बॉडी पे मैंने क्या फोर्स अप्लाई किया? फोर्स एफ. कैसे फोर्स अप्लाई किया? कि इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया? एंगल थीटा. सपोज अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स ये जो मेरी बॉडी है इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी थ्रू ए डिस्टेंस एस. ये बॉडी जो है जिस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया था इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी थ्रू अ डिस्टेंस एस. अब बॉडी पे मैंने फोर्स भी अप्लाई किया, बॉडी ने डिस्टेंस भी मूव की, तो लिहाजा बॉडी पे वर्क भी किया होगा. हमने बॉडी पे वर्क भी किया होगा इस फोर्स ने. ठीक है ना? नाउ मैं ऐसे लिखूंगा, लेट अ बॉडी बी प्लेस्ड एट पॉइंट ए. ठीक है ना? ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. What is F? F क्या है? Force, शाबाश, applied on a body, constant force. हम लिखेंगे constant force. F is equal to what? Constant force. आप लिख सकते हैं constant force applied on a body. ठीक है ना? In a direction making angle theta with the horizontal. F is equal to constant force applied on a body in a direction making angle theta with the horizontal. इस फोर्स की वजह से बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की? S. S is equal to distance, या हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट moved by a body. S is equal to distance, oblique क्या लिखा आपने? Displacement moved by a body under the action of this force. Under the action of this force. Under the action of this force. मैंने बॉडी ले ली, इस पे मैंने फोर्स F अप्लाई किया.
कैसे अप्लाई किया कि इस फोर्स एफ ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया बच्चा, एंगल थीटा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में बॉडी ने मूव किया फ्रॉम पॉइंट ए टू बी थ्रू ए डिस्टेंस एस। W is equal to work done on the body. W क्या है, work done on the body. What's W? Work done on the body. Therefore W हो गया बराबर प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, शाबाश, डिस्प्लेसमेंट एंड शाबाश कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चूंकि आपने ऊपर वर्क की डेफिनेशन पढ़ी तो ये W होगा बराबर डिस्प्लेसमेंट, शाबाश, इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वही कंपोनेंट जो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हम क्या काम करेंगे बेटा, इस फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे। मैंने वेक्टर्स में आपको पढ़ाया था, अगर ये वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए, इस वेक्टर ए ने एंगल थीटा बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ। इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मैंने वहां दिखाया था ए एक्स, वो किसके बराबर होता था, ए कॉस थीटा। दूसरा होता था वर्टिकल कंपोनेंट, वो होता था ए वाई, वो किसके बराबर था, ए साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ए कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, ए साइन थीटा। इसी तरीके से वर्क डन निकालने के लिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना है, एस। अब हमने क्या निकालना है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। दैट मींस फोर्स का वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। यहां पर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसके कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट। एक होगा यहां से, कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो होगा एफ कॉस थीटा। यहां वेक्टर ए था, यहां क्या था, वेक्टर एफ। दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट, यहां पर वो क्या होगा, शाबाश, दैट विल बी इक्वल टू शाबाश एफ साइन थीटा। नंबर वन विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा, नंबर सेकंड विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो हम कैसे बोलेंगे, हम लिखेंगे रिजॉल्विंग फोर्स एफ इंटू कंपोनेंट्स, रिजॉल्विंग फोर्स एफ इंटू कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। नंबर वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल टू एफ कॉस थीटा। नंबर सेकंड क्या होगा, शाबाश, वर्टिकल कंपोनेंट, शाबाश, वर्टिकल कंपोनेंट वो क्या होगा, शाबाश, एफ साइन थीटा। यहां पर मैंने फोर्स को दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट क्या हुआ, एफ कॉस थीटा, दूसरा क्या है बेटा, एफ साइन थीटा। जो एफ कॉस थीटा है वो किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट इस साइड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जो एफ कॉस थीटा है वो किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम लिखेंगे सिंस एफ कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, since f cos theta is in the direction of displacement, therefore मेरा जो W होगा वो होगा बराबर, what is displacement, S into what is the component of force in the direction of displacement, f cos theta या f sin theta, f cos theta, ठीक है ना। तो W हो गया बराबर S into f cos theta। हम ऐसे लिखेंगे W is equal to f s cos theta, W is equal to Fs cos theta। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है वर्क पावर एनर्जी में, W is equal to Fs cos theta। इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो एक्सप्रेशन है ये निकाला मैंने फॉर वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय व्हाट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। W is equal to Fs cos theta जो है, दिस इज द वर्क डन by the force on the, by what force, this is the work done by the constant force acting on a body। जो ये F है, F जो है, F is the force acting on a body। थीटा जो है ये एंगल है between F and S।
है ना। एस किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ फोर्स ने क्या एंगल बनाया, थीटा। इसका मतलब है जो ये थीटा है, इट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। ठीक है ना। दिस रिप्रेजेंट्स द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय अ कांस्टेंट फोर्स। क्या किया आपने एक बॉडी ले ली, इसको कहां पर रखा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। इस बॉडी पे आपने क्या अप्लाई किया, फोर्स। कैसे अप्लाई किया फोर्स, कि इस फोर्स ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। ठीक है ना। W क्या लिया आपने, वर्क डन ऑन द बॉडी। W की डेफिनेशन होती है, W होता है डिस्प्लेसमेंट एंड शाबाश प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वो कंपोनेंट जो किस डायरेक्शन में होगा, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या किया, इस फोर्स को आपने रिजॉल्व किया। किन में किया रिजॉल्व, कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट क्या आया, एफ कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। दूसरा क्या आया, जो एफ कॉस थीटा है वो है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिहाजा जब हमने वर्क निकालना होगा, हमें एफ साइन थीटा नहीं निकालना है, एफ साइन थीटा नहीं लेना है, क्योंकि एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है। हमको वो वाला कंपोनेंट फोर्स का लेना है जो वहीं से होगा जहां से डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट की साइड में कौन सा फोर्स है, एफ कॉस थीटा। तो हमने W लिखा, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, एस के बराबर। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, एफ कॉस थीटा। तो हमें निकला एक्सप्रेशन W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय अ कांस्टेंट फोर्स। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो बेटा, चूंकि आपका जो F है वो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। आपने ऐसे पढ़ा होगा A डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा। तो जब भी आपको ए बी कॉस थीटा आता है, उसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A डॉट बी, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ये थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड B। इसी तरीके से एफ एस कॉस थीटा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एफ डॉट एस, चूंकि थीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो इन वेक्टर फॉर्म वी राइट W is equal to F dot S. In vector form we write this equation as W is equal to F dot S. W is equal to F dot S. इस W पे मैंने वेक्टर नहीं डाला। क्यों मैंने इस पे वेक्टर नहीं डाला, क्योंकि ये W दो वेक्टर का क्या प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। चूंकि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। लिहाजा जो रिजल्ट आपका यहां W निकला, ये कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। सो इन वेक्टर फॉर्म वी राइट दिस इक्वेशन एज W is equal to F dot S. ठीक है ना। हम hence work done on a body is equal to dot product of force acting on a body and the displacement moved by the body. तो हम दूसरी डेफिनेशन यहां पर देंगे, hence the work done on a body is equal to what, शाबाश, dot product of किस का डॉट प्रोडक्ट, शाबाश, किस का डॉट प्रोडक्ट, force acting on a body and the displacement moved by the body. Hence work done is defined as the dot product of force applied on a body and the displacement moved by the body. ठीक है ना। चूंकि वर्क डन जो है ये दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है, लिहाजा दिस वर्क इज व्हाट क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। Why work is a scalar quantity? Work is a scalar quantity because it is the dot product of two vectors. कौन सा वेक्टर है, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना। इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंपोनेंट फॉर्म, work done in a component form, work done in a component form, work done in a component form. अब हम इस वर्क डन को, इस वर्क को हम किस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, कंपोनेंट फॉर्म। यहां देखो, अगर ये वेक्टर A है, जब हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं AXI प्लस AYJ प्लस AZK। ये क्या होता है, X कंपोनेंट, ये क्या होता है, Y कंपोनेंट, ये क्या होता है, Z कंपोनेंट। इसी तरह वेक्टर B को लिखेंगे, वो किसके बराबर होगा, BXI प्लस BYJ प्लस BZ। हमें पता है W है बराबर F डॉट S।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम फोर्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। जरा फोर्स किसके बराबर होगा? शाबाश, एफ एक्स आई, ठीक है ना, प्लस शाबाश एफ वाई जे प्लस शाबाश एफ जेड के, ठीक है ना। दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ फोर्स। एफ एक्स क्या है? फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट। एफ वाई क्या है? फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। एफ जेड क्या है? फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? जेड कंपोनेंट। इसी तरह एस को लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, ये होगा एस एक्स आई शाबाश प्लस एस वाई जे प्लस एस जेड के, ठीक है ना। F इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। S किसके बराबर लिया मैंने? एस एक्स आई एस वाई जे प्लस एस जेड के। एस एक्स कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट। एस वाई कौन सा कंपोनेंट है? वाई कंपोनेंट। एस जेड कौन सा कंपोनेंट है? जेड कंपोनेंट। अब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। क्या बनेगा ये? शाबाश, ये बनेगा W इज इक्वल टू F का वैल्यू दे दो शाबाश, एफ एक्स आई प्लस शाबाश एफ वाई जे प्लस शाबाश एफ जेड के डॉट, दरमियान में डॉट आएगा शाबाश, एस एक्स आई प्लस शाबाश एस वाई जे प्लस एस जेड के। आया ना यहां पर? आया ना यहां पर? अब यहां पर हम कोएफिशिएंट्स को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और वेक्टर्स को कौन सा प्रोडक्ट करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। देखो ये बनेगा W इज इक्वल टू एफ एक्स एस एक्स, पहले एफ एक्स से किसके मल्टीप्लाई करेंगे? ये बनेगा एफ एक्स एस एक्स आई डॉट आई, क्योंकि यहां पर क्या है? वेक्टर आई, यहां पर क्या है? वेक्टर आई, दरमियान में कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। प्लस शाबाश एफ एक्स शाबाश एफ एक्स एस वाई एफ एक्स एस वाई, उसके बाद क्या आएगा? शाबाश आई डॉट जे, ठीक है ना। प्लस क्या आएगा? शाबाश एफ एक्स एस जेड, साथ क्या आएगा? आई डॉट के। हो गया एफ एक्स से मल्टीप्लाई। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एफ वाई से। प्लस शाबाश एफ वाई, यहां क्या आएगा? एस एक्स शाबाश, साथ क्या आएगा? शाबाश जे डॉट आई, जे डॉट आई, प्लस क्या आएगा बेटा? एफ वाई एस वाई शाबाश एफ वाई एस वाई, साथ क्या आएगा? शाबाश जे डॉट जे प्लस एफ वाई एस जेड, ठीक है ना। साथ क्या आएगा? शाबाश जे डॉट के, ठीक है ना, ठीक है ना। प्लस अब देंगे एफ जेड से, क्या आएगा बेटा? शाबाश एफ जेड एस एक्स शाबाश के डॉट आई शाबाश प्लस शाबाश एफ जेड एस वाई, ठीक है ना, के डॉट जे। लास्ट पे क्या आएगा? शाबाश एफ जेड एस जेड के डॉट के, एफ जेड एस जेड के डॉट के। देखो बेटा आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, आई डॉट जे 0 है, आई डॉट के 0 है, जे डॉट आई 0 है, ठीक है ना, जे डॉट के 0 है। तो यहां पर खाली 3 टर्में रहेंगे, एक रहेगा एफ एक्स एस एक्स, दूसरा क्या रहेगा? शाबाश एफ वाई एस वाई, कहां पर है? ये वाला एफ वाई एस वाई, तीसरा क्या रहेगा? एफ जेड एस जेड। तो आपको ऐसे निकलेगा W इज इक्वल टू एफ एक्स एस एक्स इंटू 1, चूंकि बाकी टर्म जो है वो 0 बन जाएंगे, प्लस एफ वाई एस वाई इंटू 1, प्लस क्या रहेगा? शाबाश एफ जेड एस जेड इंटू 1। तो आपका W निकला एफ एक्स एस एक्स शाबाश प्लस एफ वाई एस वाई, ठीक है ना, प्लस शाबाश प्लस एफ जेड एस जेड प्लस एफ जेड एस जेड, ठीक है ना। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स वर्क डन इन ए कंपोनेंट फॉर्म। तो W निकला आपको बराबर एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। ये जो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन इन व्हाट फॉर्म? कंपोनेंट फॉर्म। इट रिप्रेजेंट्स वर्क डन इन ए कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है ना। इससे कंप्लीट मैंने किया वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। डिस्कस नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, आपने अभी पढ़ा वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज गिवन बाय W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिपेंडिंग अपॉन दिस एंगल थीटा, ये एंगल थीटा जो मेरा होगा इट कैन बी एक्यूट, इट कैन बी ऑब्ट्यूज,
it can be right angle. ठीक है ना? Depending upon this angle theta, work can be positive, work can be negative, work can be zero. चूंकि हमारा जो एंगल थीटा है ये एक्यूट भी हो सकता है, ये ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ये 90 डिग्री भी हो सकता है. Depending upon this angle theta, work can be positive, negative, number third, zero. We can have a positive work, we can have a negative work, we can have zero work. पहले बेटा हम पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क. क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव वर्क. हम देखेंगे वर्क डन बाय द फोर्स कब पॉजिटिव होगा. When the work done by the force will be positive. देखो बेटा, सपोज यहां पर मेरी एक बॉडी है, ये ठीक है बेटा, ये बॉडी है. सपोज ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का. सपोज ये फोर्स है, ठीक है ना, ठीक है ना. ये एंगल थीटा है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं इस फोर्स के कंपोनेंट निकालूंगा, इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो F cos थीटा होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना? वो कब पॉसिबल होगा? इस फोर्स का कंपोनेंट कब हॉरिजॉन्टल इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा? जब थीटा जो है वो एक्यूट होगा. यहां देखो, मेरी तरफ बात, बोर्ड की तरफ देखो. थीटा क्या है हमारा? एक्यूट. ठीक है ना? थीटा क्या है? देखो यहां पर मैं दूसरा केस लूंगा. ये बॉडी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, मैं यहां लूंगा यार. जरा यहां एफ का कंपोनेंट निकालो. वो इस साइड में नहीं होगा, वो यहां से होगा. यहां से होगा आपका एफ cos थीटा. यहां से जो कंपोनेंट है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर जो आपका थीटा है वो ऑब्ट्यूज है. ठीक है ना? जब थीटा एक्यूट होगा, जब थीटा एक्यूट होगा, W आपको बराबर है F cos थीटा. जब थीटा एक्यूट होगा, यानी बिटवीन 0 एंड 90 होगा, बिटवीन 0 एंड 90. ठीक है ना? उस वक्त cos थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा. देखो क्यों? cos 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर. cos 90 किसके बराबर है? 0 के बराबर. तो इसका मतलब है जब थीटा एक्यूट होगा, उस वक्त जो cos थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा. उस वक्त मेरी वर्क जो होगी वो होगी पॉजिटिव. ठीक है ना? जब थीटा एक्यूट होगा, उस वक्त जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. को हम ऐसे बताएंगे, वर्क डन on a body by a force is said to be a positive work if the force has component in the direction of displacement. Work done on a body by a force is said to be a positive work if the force applied on a body has component. कहां से कंपोनेंट है? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ a body या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ a body. It occurs only when theta is acute, because when theta is acute, cos theta is positive. Therefore W is equal to Fs cos theta is equal to what? Positive. तो हम ऐसे कहेंगे वर्क डन जो होता है वो तब पॉजिटिव होता है जब फोर्स जो मैंने बॉडी पे अप्लाई किया, उस फोर्स का कंपोनेंट होगा वहीं से जहां से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा. Example of positive work. Example of positive work. बेटा ये बॉडी है, ये यहां मेरी तरफ देखो, ये बॉडी है. Suppose this body falls freely under the action of gravity. जब इसने फॉल किया फ्रीली, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है. जब ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो आपका थीटा जो होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री. तो W निकालो, वो होगा Fs cos 0. cos 0 होता है 1, तो आपको निकलेगा W is equal to Fs into 1. तो आपका वर्क क्या वर्क निकला? पॉजिटिव वर्क. वर्क डन
by the gravitational force on a freely falling body is a positive work. Why it is a positive work? Because the gravitational force and the displacement, they act in the same direction. Therefore, theta is equal to 0 degree. When theta is equal to 0 degree, W is equal to Fs cos 0. W is equal to Fs into 1. इसका मतलब है W जो होता है, W will be equal to Fs. वो कौन सी वर्क होगी गुब्रा? वो होगी पॉजिटिव वर्क. सेकंड एग्जांपल, हम एक स्प्रिंग लेंगे, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे. स्ट्रेच करना होता है, इसको क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स. तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या है? फोर्स. ये स्प्रिंग है, इसको मैं स्ट्रेच करूंगा. इसका जो एक्सपेंशन है वो इधर से नहीं होगा, वो वहीं से होगा जहां से हमने फोर्स अप्लाई किया. ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग यथ लंब ये स्प्रिंग स्टेनियन जेट ये मैं बात फोर्स लगाओ, यानी यू सी स्ट्रेचिंग फोर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग इट इज इन द सेम डायरेक्शन. लिहाजा वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव. हम लिखेंगे वर्क डन by the stretching force in stretching a spring is a positive work, because in this case the stretching force and the displacement produced in the spring, they act in the same direction. Therefore, work done on a body is what work? Positive work. Work done on a body is what work? Positive work. कब है positive work? शाबाश. जब क्या क्या? शाबाश. When the stretching force and the displacement, they act in the same direction. ठीक है ना? This is about what work? Positive work. This is -1/2. ठीक है ना? cos 120 क्या होता है? -1/2. जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा, जो आपका cos थीटा होगा वो नेगेटिव होगा. जब cos थीटा नेगेटिव होगा तो आपका W जो है वो बनेगा नेगेटिव. चूंकि cos थीटा नेगेटिव, तो Fs cos थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा. जब Fs cos थीटा नेगेटिव होगा तो आपका W क्या होता है? नेगेटिव. तो आप डिफाइन कैसे करेंगे? आप ऐसे बोलेंगे वर्क डन ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी अ नेगेटिव वर्क इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी हैज कंपोनेंट इन अ डायरेक्शन opposite to the direction of displacement of a body, opposite to the direction of motion of a body. It occurs only when angle theta between force and displacement is what angle? It is an obtuse angle. Because when theta is obtuse, cos theta is equal to negative. Therefore, W is negative. देखो ऐसे बोलेंगे. Suppose मैंने एक बॉडी ऊपर लगा दी. This body is moving vertically upwards. Gravitational force कहां से है? डाउनवर्ड. तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी आपका थीटा कितना होगा? 180. जब थीटा 180 होगा, cos 180 किसके बराबर है? -1. तो W किसके बराबर निकलेगा आपको? नेगेटिव. आप ऐसे बताएंगे वर्क डन. एग्जांपल इसकी, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स on a body moving vertically upwards is negative work, because in that case the direction of motion or the direction of displacement and the direction of force, they are opposite to each other. When they are opposite to each other, your theta is 180. When theta is 180, your W is equal to Fs cos of 180. cos 180 is -1. तो आपको W निकलेगा बराबर Fs into -1. तो आपको W निकलेगा बराबर -Fs. This is the first example of negative work. Work done by the gravitational force on a body moving vertically upwards is what work? Is a negative work, because in that case the motion of body or the direction of displacement and the direction of force, they are opposite to each other. दूसरी एग्जांपल मैं दूंगा. जब एक बॉडी मूव करती है ऑन ए रोड, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अपोजिट होता है टू द अप्लाइड फोर्स, है ना? फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू व्हाट फोर्स? देयरफॉर वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स during the motion of a body is what work? Negative work, because in that case the frictional force is always opposite to the direction of motion of body, or the frictional force is always opposite to the direction of displacement of a body. Therefore, work done by the frictional force is what work? Is a negative work.
Now the third case is zero work, which we discuss tomorrow.